Hello everyone. Today we will start the new topic, that is digestion and absorption. So the name of topic is digestion and absorption. Now we all know in this lockdown period we all are like at sitting at home, doing some studies, looking for some online classes, right? और हम लोग कुछ lectures पढ़ रहे हैं. So what exactly we are doing here? We are studying and then we are enjoying our lockdown along with our mom, dad, and along with our relative. During this, the most important thing we are doing here, attending the lectures, and second thing, eating your favorite food. So what is important here is today in the chapter of digestion and absorption, whatever you are going to eat, okay, is how they going to be digest inside your body. That is also important. यानी जो भी आप खा रहे हो, how they are going to be digest inside your stomach, or you can say not stomach only, inside your whole gastrointestinal tract. Okay, so gastrointestinal tract, and it start from your mouth and it will finish in your intestine. Okay, so this is how that's why it is called the gastrointestinal tract. Okay, now there are a lot of food you like to eat, right? Sometimes you like to eat chapatis and curry. Sometimes you eat to like some junk food, right? Whatever it is, right? And the most important junk food the everybody like is what? The burger, right? So we will start with the burger. Okay. So whenever you are eating the burger, I will just keep this pen down, and then we will see how and what are the important thing whenever you are eating that particular burger. Now look at here. So this is your burger, small burger. I will just make it bigger so you can have a look here. तो ये हो गया, अभी बड़ा हो गया. Now look at the burger. Whatever you are looking is here. It is starting from this bun of bread to this bread. I will just tilt it. Okay, now you can see it much better. Now what are the things which is present in that burger? That is also important, because सब लोगों को अपना अपना बर्गर अलग अलग से बनाना है. लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या देखना है कि इस बर्गर में है क्या क्या, राइट? सो इट इज नॉट लाइक कि ब्रेड है, पैटी है, वेज वाली है, नॉन वेज वाली है, ये डालो. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. If you are learning the digestion and absorption chapter, you have to learn here what are the things which are present, what are the nutrients which are present. Okay, so we will start. Now I will just make it flip it little bit up. Okay, so we can see. Okay, I will just make it up. Now we can start here. Now if you look at this bread, okay, so there is a lot of carbohydrate in there. Okay, what you can see here in that bread, which is made up of wheat, most commonly wheat bread are much better. Okay, they have a lot of carbs there. Okay, on top of that particular bread, you can see here, I will make it a little big. This is the patty we are using for the burger. Either it will be the vegetarian or non-vegetarian. Okay, but it should be made up of protein. So whatever the protein thing you are getting from this particular the patty. So you can see here, from bread you are getting the carbohydrate, right? Okay, from patty you are getting what? You are getting the protein. Now on top of that, I will just make it little lower. Okay, now you can see the cheese here. You can see your favorite cheese. Okay, it might be the Parmesan cheese or all. Okay, but they have a lot of fats there. Okay, so whenever you start from the bread, you get your, what is that called, carbohydrate. Then on in patty you will get your protein. On top of that, this cheese slice is giving you the fat or lipid. Everything is important for your diet. Now on top of this cheese, if you see here, this one, this is what tomato ketchup or any kind of like thing which make your burger more tasty. This is what the mayonnaise. I will just make it lower. I will make this smaller. Okay, so you can see that. Okay, now comes the best part. What is this? You are seeing the
green vegetables, the leaf of green vegetable, lots of minerals are there. So if you see from bottom, the bottom is having the carbohydrate, then protein, then fat or lipid, then comes your some of the little spicy thing like sausages, and now you are seeing here what is this? This is what the green leafy vegetable which is full of minerals. Okay, I will just make it little bit tilt here, थोड़ा सा tilt करते हैं. Okay, and now you will see one more fruit here, that is called the tomato. A lot of, what is that called, lycopene and chromopigment like, and a lot of minerals are there, right? So green leafy vegetables, tomato. If you keep that tomato down, now you can see the cucumber also, right? So cucumber. Now comes the onion ring. Usually what exactly the onion you can found under the ground. Okay, what is that? It is nothing but the storage part of the plant. It is which part of the plant? Storage part. And which part? Either it is a root or stem. No, this is the modified stem. This is what onions are, nothing but the modified stem. अगर आप लोगों ने अगर अनियन देखे होंगे तो इस तरह से आपको अनियन दिखेगा और यहाँ उसके रूट रहेंगे, right? And now you can see the onion here. So this onion, okay, it is nothing but the modified stem along with their leaf. ये पूरे इस तरह से रहेंगे. So if you cut the onion, you can see the rings of onion. But that is not in this chapter कि कैसे है, वो हमारे दूसरे plant वाले chapter में रहेगा. Here you are more interested about the onion ring. Tomato तो डाल दिया, साथ में तुम लोगों ने थोड़ी ककड़ी भी डाल दी, cucumber. Now you already add the onion ring, and on top of that, whatever you see, your favorite next or top bread. So I will just make it smaller one. Okay, so if I make it small and I will just make it like this, now you can see from top to bottom. Okay, a bread, one more bread. What is that? Carbohydrate. Now protein patty, either it is a veg or non-veg. Lipid हो गया, sausages हो गए, minerals हो गए, leaf में, tomato में, ककड़ी में वापस starch थोड़ा हो गया, and now you can see. So whenever, if you calculate the thing in this particular burger, this is your might be the wheat bun or wheat bread. So here there are carbs, carbohydrate. Now you can see here protein. Here you can see your cheese, that is lipid or fat. Now these are your spicy thing which make more tasty. You can have the salts here. Salts आपको यहाँ मिल जाएंगे. In leafy vegetables, I will just make it little bit tilt here so you can see. Okay, now these are the leaf where you can get lot of minerals. Here tomato, lycopene and other important minerals and element. Onion, again starch. So whenever we are talking about the complete food, what is complete food? हमारे खाने में complete food क्या होना चाहिए? What is basically the complete food? A complete food is whatever you are seeing here. कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए हमको एनर्जी के लिए, प्रोटीन चाहिए हमारे मसल बिल्डअप के लिए, लिपिड चाहिए हमारे जो नर्व्स है उनके इंसुलेशन के लिए, नर्व का जो कोटिंग है उसके इंसुलेशन के लिए, स्पाइसी एंड टेस्टिनीज हमारी जो हंगर को और ज़्यादा कंट्रोल करती उसके लिए चाहिए, लीफ, टोमेटोज, क्यूकम्बर, व्हाट दे हैव, दे आर रिच इन मिनरल्स, राइट? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट for our body metabolism and functions, against starch, and on top of that there is a carbohydrate. So this is nothing but the total package of the food which you want whenever you are eating. Okay, so whenever somebody says burger is not good for health, basically it is about what? Whenever, if this bread is not made up of wheat, it is made up of some another flour. This patty is much oily. These sausages, they are not really the homemade sausages, right? So if they have more, that is additive coloring agent, so that is why people are saying they are bad. But if you make it at home, everything will be taken care. ये wheat हो गया, ये onion हो गया, clean वाला, fresh वाले vegetables हो गए, थोड़े से homemade sausages हो गए, sauce, right? And then cheese, and along with the patties. So whole burger kind of thing
is good for your health. जो आपकी डिमांड है, राइट, सो दिस डिमांड ऑफ योर विश दैट इज कॉल्ड द फूड, कंप्लीट डिमांड, हमारे बॉडी की जो कंप्लीट डिमांड रहती है फूड की, राइट, दैट कंप्लीट डिमांड आवर बॉडी नीड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और साथ में पानी तो हम लोग पीते ही है, राइट. सो दैट okay, I don't say anything about any like soft drink, okay, because they are carbonated and they are not really good for your health. In spite of that, a glass of water, it is much better. So along with this whole, a glass of water is much better. So your body need about carbohydrate, protein, fat, minerals, and along with the water is 100% fulfilled. And this is how we have to go for the eating. और जो फिर अब आप खा रहे हो, ये सब आप लोगों ने तो खा लिया, राइट. डोंट बी हंग्री, अभी आपको लेक्चर सुनना है, उसके बाद आपको जाके ये सब कुछ खाना है करके, नहीं तो अरे लेक्चर में बर्गर है तो हम लोग बर्गर ही खाएंगे, ऐसा नहीं. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल क्लासिकल फूड जो बहुत लोग प्रेफर करते हैं, राइट. एवरीवन, ओके, फ्रॉम चिल्ड्रन टू द सीनियर सिटीजन, एवरीवन वांट टू ईट दैट, बट there are some good thing in that, how you calculate the daily your requirements. So this is the thing हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले कि इतना बड़ा जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेड जाएगा, प्रोटीन जाएगा, तो किस तरह से आपके बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है, दैट इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, राइट. सो वी विल स्टार्ट विथ अवर चैप्टर इज व्हाट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. फर्स्ट वी फिनिश द डाइजेशन पार्ट in this chapter and then we will go for the absorption. Okay, so what is digestion? Breaking down of large food molecule into the smaller molecule. क्या करता है? What is digestion? Digestion is basically breaking of large food molecule into small. या हम लोग हमारी बायो की लैंग्वेज में बोलते हैं, इनसोल्यूबल जो है उसको किस फॉर्म में करते हैं? सोल्यूबल फॉर्म में. दैट इज द डाइजेशन. ओके, सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन और सोल्यूबल फूड. सो दैट, क्यों तुम्हें छोटे छोटे टुकड़े करने, बड़े इसके क्यों छोटे छोटे टुकड़े करने, राइट, इसलिए करने हम लोगों को, सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब. ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे. कहाँ हो जाएंगे? आपके, आप जो भी चीज खाते हो, राइट, सो वट एवर थिंग्स यू आर ईटिंग, राइट, दैट विल गो इनटू द जीआई ट्रैक्ट. तो ठीक है, आपने खा लिया, वो तो नीचे चले गए सब, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जाने के बाद क्या करना है उसका, उसमें के जो मॉलिक्यूल है, जो सोल्यूबल फॉर्म वाले मॉलिक्यूल है, लाइक प्रोटीन का सबसे छोटा, अगर आप बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो सबसे, ये हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन. अब इसको थोड़ा तोड़ोगे तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड. अब अमीनो एसिड को आप तोड़ के कुछ नहीं बना सकते, फिर तो डायरेक्ट एटम कार्बन हाइड्रोजन निकलेंगे. अगर आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल कौन सा है कार्बोहाइड्रेट का? माइक्रोबायो मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर. ओके, मोनोसैकेराइड. ओके, फैट का फैटी एसिड हो गया या ग्लिसरॉल हो गया. मिनरल्स को तो तोड़ने की जरूरत नहीं, यू कैन इजीली डाइजेस्ट दैट. तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जब डाइजेस्ट होने के बाद ये हो जाएगी एब्जॉर्ब आपके ब्लड सर्कुलेशन में. किधर जाएगी? आपके ब्लड सर्कुलेशन में. यहां से जाएगी वो सारी चीजें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज कॉल्ड लिवर. लिवर में जाएगी. यहां जाके क्या हो जाएगा? देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज को थोड़े थोड़े टुकड़े जोड़कर एक बड़ा सा ग्लाइकोजन करके स्टोर करके रखें, क्योंकि आप दिन भर तो खाएंगे नहीं, आप एक टाइम खाओगे, फिर धीरे धीरे वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है आपके बॉडी के पूरे सेल एनर्जी सोर्स करके यूज करेंगे, लेकिन जो ज्यादा है वो स्टोर करके रखेंगे, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. ओके, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज डिफरेंट एंड जेनेसिस इज डिफरेंट. जेनेसिस यानी ग्लाइकोजन जनरेट करना, लाइसिस यानी तोड़ना. फिर ये ग्लूकोज का हो गया. प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड. ओके, फिर वो अमीनो एसिड हो गया. अब अमीनो एसिड ब्रेक करते करते अगर अमीनो एसिड को भी ब्रेक कर दिया तो यूरिया रिलीज होगा, अमोनिया रिलीज होगा, राइट, यूरिक एसिड होगा, तो वो एक्सक्रीट होगा. दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी. तो वो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो तो बाहर निकल जाएंगे. तो वो हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे. यहां सिर्फ क्या जाएगा और तोड़ के कहाँ यूज हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं. और आपकी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट वो भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लिपिड.
स्मॉलर मॉलिक्यूल में। और ये सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म जो है, जिसमें हम लोग कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों चीज़ें होती है। मेटाबॉलिज्म इज व्हाट, अ मिक्सचर ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी तोड़ना, एनाबॉलिज्म यानी जोड़ना। यानी समझ लो आपने एक लड्डू खाया, उस लड्डू को आप यहाँ तोड़ते तोड़ते आपके पेट में चला गया, दैट इज शुगर, राइट। सो पॉलीसैकेराइड जिसको बोलते, फिर धीरे धीरे ऑलिगोसैकेराइड हो जाएगा तोड़ के, फिर व्हाट इज दैट कॉल्ड, ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड यानी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर। वो मोनोसैकेराइड आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, आपके लिवर में जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मोनोसैकेराइड लिवर में जाएंगे। वहां जाके क्या होगा, जो चाहिए वो वापस सर्कुलेशन में जाएंगे, आपके हर बॉडी के सेल में वो एनर्जी दे देंगे। लेकिन अब आपको वो हो सकता है ज्यादा है आपके पास, तो आपका लिवर उसको स्टोर करके रखेगा। ऐसे ही सबके साथ होगा, प्रोटीन के साथ भी होगा, फैट के साथ भी होगा। दिस इज हाउ द ब्रेकिंग डाउन of the large food molecule into the soluble form with the help of lot of enzymes which are present in the gastrointestinal tract. सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही नहीं एंजाइम्स रहते, आपके कुछ एंजाइम्स पैंक्रियाज में, आपके माउथ में भी जो सलाइवा है ना आपका, वहां पर भी एंजाइम्स रहते। तो वैसे तो डाइजेशन, लोग बोलते हैं ना डाइजेशन किधर स्टार्ट हो गया, डाइजेशन हमारे पेट में होता। नो, डाइजेशन स्टार्ट वंस यू take the what is that called basically your food inside the mouth। और जैसे ही आपने उसको चबाना चालू कर दिया, च्यूइंग चालू कर दिया, सलाइवा मिक्सिंग हो जाएगा और डाइजेशन चालू हो जाएगा। फिर धीरे 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 डाइजेशन फिनिश होगा आपके इंटेस्टाइन में। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जिसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं, राइट। जब भी जो भी चीज आपको चाहिए वो आप ले लेते हो और बाकी चीज आप फेंक देते हो, राइट। सो दैट अनडाइजेस्टेड इज you have to use, you have to basically use for what, that not you don't have to use, basically you have to take it out। और जो take it out वाली प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डेफिकेशन। डेफिकेशन यानी क्या? फीसेस के फॉर्म में अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर निकाल देना, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द डेफिकेशन। ओके, नाउ ये हो गया आपका डाइजेशन का। नाउ व्हेनेवर व्हाट इज दैट स्टेप्स, स्टेप ऑफ डाइजेशन वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है, राइट। 8, 9, 10 में हम लोगों को बेसिक उन्होंने कुछ स्टेप बताए थे, ओके। और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया? ब्लड में हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया, राइट। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज दैट। सो ये जो प्रोसेस है आपके डाइजेशन की, सबसे पहले आप क्या करते हो? खाते हो, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। खा लिया आपने। नाउ आफ्टर इंजेशन फिर धीरे 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 वो प्रोपल्शन होगा, प्रोपल्शन, धीरे 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 वो नीचे जाएगा। प्रोपल्शन के बाद ओके उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन होगा, मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं उसको, या समटाइम इट इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। उसका टुकड़े होना चाहिए। उस डाइजेशन के बाद मैकेनिकल, फिजिकल प्लस केमिकल डाइजेशन चालू हो गया आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। उसके बाद टुकड़े जो हो गए छोटे छोटे, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, राइट, दिस एब्जॉर्प्शन आ जा। उसके बाद जो चाहिए वो यूज हो जाएंगे और बाकी सारे बाहर निकल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डेफिकेशन। दैट इज कॉल्ड बेसिकली द डेफिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, द प्रोसेस। हम लोग एक आउटलाइन बताया आपको, राइट। सो इन न्यू इंजेशन, नॉर्मली हम लोग नए इसमें क्या बोलते हैं, इंजेशन हो जाएगा। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और डेफिकेशन को उन्होंने क्या बोला है? इजेशन। डेफिकेशन को क्या बोलते हैं? बाहर निकलना, इजेक्ट होना या इजेशन। और ये यूज को वो लोग बोलते हैं, यूज करना यानी एसिमिलेशन, एसिमिलेट हो जाना। ये हो गया आपके गुड वर्ड्स, ओके। सो नाउ वी कैन से इंजेशन, इंजेशन के बाद में प्रोपल्शन भी निकाल देते हैं, ये दोनों निकाल देते हैं। इंजेशन अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद सीधा डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद डेफिकेशन निकाल दो, इजेशन हो गया। यानी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स।
नाउ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए खाने के लिए, एनर्जी के लिए। क्यों चाहिए? वी यूज दिस न्यूट्रिएंट एज ए एनर्जी, किसके लिए? हमारी ग्रोथ के लिए। हमारी ग्रोथ, और हमारी जो ग्रोथ होती है कैसे होती है? बाय सेल डिवीजन, यानी सेल को डिवाइड होने के लिए, सेल को ग्रोथ करने के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। या ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर सेल के ग्रोथ के लिए या सेल के रिपेयर के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सो दैट यू कैन मेक द न्यू सेल। सो नए सेल बनाने के लिए, क्यों नए सेल चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए और सेल रिपेयर के लिए चाहिए। इसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो आपको न्यूट्रिएंट से मिलती है। कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट से। और ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आप ठीक से खाओगे। व्हाई वी नीड द न्यूट्रिएंट्स? बिकॉज टू मेंटेन द बॉडी प्रोसेसेस, हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी प्रोसेस है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, तो ये सारे सेल आपके लंग के काम कर रहे हैं, इनहालेशन और एक्सहालेशन। उन सेल को एनर्जी चाहिए, इसलिए आपको न्यूट्रिएंट्स खाना है। आप खाना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे आपका न्यूट्रिशन बंद हो जाएगा, सेल को जाना, जो आपकी बॉडी में स्टोर है वो यूज हो जाएगा। कुछ दिन के बाद आप कैकेक्सिक हो जाओगे, माल नरिश हो जाओगे, और धीरे धीरे पर्सन कैन लैंड अप इनटू डेथ इफ ही और शी कैनॉट मेंटेन हिज न्यूट्रिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर what are the use, why we need the nutrient, that is very important. Okay, so if you see here, so digestion usually start from the mouth. Okay, यहाँ आपकी टंग रहेगी, राइट, और यहाँ रहते टीथ। तो ये पूरा हम लोग मैंडिबल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ से जाएगा नीचे, यहाँ रहेगा आपका ईसोफेगस, ये हो गया आपका ईसोफेगस। उसके बाद ये आएगा आपका स्टमक, हम लोग स्टमक निकालते हैं। उसके बाद ये ड्यूडेनम, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। अब थोड़ा कॉइल जो है, ज्यादा नहीं, थोड़ा कॉइल करते हैं, ये हो गया आपका जेजुनम। अब ज्यादा कॉइल करते हैं, ज्यादा कॉइलिंग हो गई। उसके बाद में बोलता हूं मैंने व्हाई आई मेड मोर कॉइलिंग। ये हो गया ज्यादा कॉइलिंग उसके बाद का। अब इसको ओपन करते यहां पर, ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इसके ऊपर का हम लोग यहाँ का निकालते नहीं, क्योंकि फिर हमें ये दिखेगा नहीं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। चलो वापस इधर से नीचे आना है ना। सो दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन अगेन। अब लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ एक एस शेप कर्व बनाएगा। उसके बाद ये टेम्पररी स्टोरेज वाला रेक्टम, उसके बाद एनल कैनल हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द जीआई ट्रैक्ट। इस तरह से हम लोग को जीआई ट्रैक्ट पढ़ना है, राइट। ओके, ये तो हो गया हम लोगों का। अब और क्या है जीआई ट्रैक्ट में? सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर एक पार्टीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। ओके, इस डायफ्राम के पास यहां रहेगा आपका लिवर, पूरा यहां से यहां तक। सो ये बड़ा लोब है लिवर का। ओके, नाउ यहां आपका एक दूसरा ग्लैंड रहेगा,
जो ये मैंने रेड कलर का निकाला है, देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये उसकी डक्ट, इसको बोलते पैंक्रियाज. व्हाट इज दिस? दिस इज द पैंक्रियाज. और कोई है डाइजेशन के लिए? सिर्फ ये दोनों ही नहीं, और है ना, आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, एक आपकी पैरोटिड ग्लैंड इधर है, एक यहाँ पर रहेगी और कुछ इधर रहेगा, तो ये आपकी होगी पैरोटिड ग्लैंड. ये तो आपका ट्रकिया वगैरह हो गया, राइट. जहाँ से आपका लंग वगैरह, दैट्स इट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन स्ट्रक्चर. तो यहाँ से हम लोगों ने बोला था इंजेशन, देन प्रोपल्शन, डाइजेशन, पूरा डाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर. उसके बाद यहाँ जो ब्लड सप्लाई है स्मॉल इंटेस्टाइन को, यहाँ से होगा एसिमिलेशन. यहाँ से क्या होगा? एसिमिलेशन. फिर यहाँ से जाएगा, देन इट विल एंटर इनटू योर लिवर. ओके, फिर यहाँ सारी चीज़ें चली जाएगी. तो एसिमिलेशन हो गया, फिर जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें है वो बाहर निकल गई, एंड देन इट विल इजेस्ट फ्रॉम द, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्ट. यहाँ वॉल रहेंगी, हम लोग बाद में देखते हैं. सो दिस इज योर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. Before going for this digestive tract, we will see what are the types of nutrition. We will see what are the types of nutrition. न्यूट्रिशन के टाइप्स देखने. सबसे पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज में सब लोगों को पता है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जैसे मम्मी नहीं, राइट. सो प्लांट, सो दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप. ऑटोट्रॉप. मम्मी तो पापा सारी कुछ चीज़ें लाके देंगे, या पापा दोनों मिलकर जो बनाएंगे, वो कहीं से चीज़ें लेकर आती है, वो डिपेंड है किसी ऊपर. इसीलिए दे आर नॉट रियली ऑटोट्रॉप, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप. सो हेट्रोट्रॉप. So grossly there are two type of nutrition: autotropic nutrition, heterotropic nutrition. What is autotropic nutrition? Synthesis of own food. खुद का फूड खुद बनाना, that is called plant. Plant क्या करते हैं, right? So plant can synthesize their own food. What is the name of that process? We already learned this process. That is called photosynthesis. So plant can manufacture their own food. The process is called photosynthesis. Okay. अब that is light presence वाला हो गया photosynthesis. लेकिन कभी कभी लाइट की जगह अगर केमिकल यूज किया जाएगा तो आप इसको क्या बोलेंगे? What you call them, that is called the, what you cannot really call them photo autotroph. उनको फोटो ऑटोट्रॉप थोड़ी बोलोगे, क्योंकि उन्होंने फोटो थोड़ी यूज किया. फोटो ऑटोट्रॉप उनको नहीं बोल सकते, उनको बोलना पड़ेगा कीमो ऑटोट्रॉप. केमिकल यूज करके उन्होंने अपना फूड बनाया. फॉर एग्जाम्पल, राइट, हाउ दे यूज द केमिकल, whatever the chemical they have, like sulfur oxidizing bacteria हो गया, आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया जो है आपके, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है. ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन और सल्फर को यूज करके अपना फूड खुद बनाते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कीमो. केमिकल यूज किया ना उन्होंने, केमिकल. यहां प्लांट ने सनलाइट यूज किया और सनलाइट यूज करके उन्होंने अपना खाना बनाया. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड photoautotrophs. So here they use the light as the energy to synthesize the food, and this one they use the nitrogen or sulfur, or you can say chemical, for the synthesis of food. Heterotroph, they cannot manufacture their own food, they depend on others. जैसे आप किसके ऊपर डिपेंड है? आपके मम्मी पापा के ऊपर. मम्मी पापा क्या करते हैं? ग्रोसरी लेके आएंगे, वहां जो बेचेगा उनके पास से लेके आएंगे, राइट. वो खुद भी कुछ नहीं करता, वो अपने फार्म में जाकर या अपने खेत में से वो वेजिटेबल्स लेके आएगा. तो बेसिकली आखिर जाना किधर पड़ा है? प्लांट के पास. और प्लांट कहीं जाते नहीं, वो अपना सारा चीज अपने इसमें ही बनाते. इसीलिए कभी भी याद रखना, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन रहता, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. एसेंशियल यानी जो हम बनाते नहीं, हम लोग बाहर से खाते या बाहर से लेते.
इसलिए हम उसको एसेंशियल बोलते। तो हमारे ऐसे बहुत से विटामिन है, प्रोटीन है जो हम लोग एसेंशियल प्रोटीन बोलते, जैसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन हो गया। फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, यूजुअली लोग नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन को फर्स्ट क्लास इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके बायोमोलिकुलर चैप्टर में आपको सब है, क्योंकि उसमें सारे प्रोटीन जो अमीनो एसिड आ जाएंगे। लेकिन वेजिटेरियन प्रोटीन में सब नहीं आते, तो यू हैव टू ऐड अनदर देयर, सो यू कॉल देम। अब इसीलिए जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं बोलते होते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल, क्योंकि हमको बाहर से खाना पड़ता, राइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसेंशियल। अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट को कोई चीज खानी नहीं है बाहर से, सब वो खुद बनाता है। और अगर आपको क्वेश्चन आया विच इज एसेंशियल अमीनो एसिड इन प्लांट, विच इज एसेंशियल वट एवर इट इज इन द प्लांट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ अबव, क्योंकि प्लांट के लिए एसेंशियल वाला कोई विटामिन हो या अमीनो एसिड हो नहीं, क्योंकि वो अपनी सारी चीजें खुद बनाता है, राइट, एक्सेप्ट ही यूज द टू रॉ मटेरियल, वन इज कॉल्ड दैट water which is present in the ground and carbon dioxide which is present in the atmosphere. By using this carbon dioxide and water in presence of sunlight, he can make his own food and that process is called photosynthesis. तो ये हो गए हेट्रोट्रॉप। एक और है, मेन तो आपके हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप ही है, एक और जो है दैट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ। व्हाट इज सैप्रोफाइटिक? ना किसी और को खाते, जैसे जानवर किसी और को खा सकते, हम किस प्लांट को, ये किसी और को नहीं खाते। दे डजंट ईट लाइफ, दे डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑलरेडी डेड हो गए या जो सड़ रहे, डिके हो रहे, वहां पर उनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं, राइट। ना किसी जिसको बोलते हैं जिस एनिमल में लाइफ हो उसको ये नहीं खाते, राइट। उसके मर जाने के बाद, उसके डेथ हो जाने के बाद दे विल ईट दैट पर्टिकुलर। सो दिस इज विच वन, सैप्रोफाइटिक। लेकिन बेसिक जो टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है और हेट्रोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉप में फोटो एंड कीमो, दैट्स इट, और हेट्रो डिपेंड्स अपॉन अदर।